आवाज आ रही सबको? तो पिछली बार जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे पढ़ना है कि स्लाइड से पढ़ाऊं मैं? सर पिछले बार ऐसे पढ़ा था। यस सर। क्योंकि मैं गलती से वाली स्लाइड भेज दिया था आपको, मतलब जो मैं पहले पिछले साल से बना के रखा हूं। मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं जो मैंने पढ़ाया था, बट गलती से वो भेज दिया था। तो मतलब पूरा मैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही करूँ ना, स्लाइड टीचिंग नहीं करूँ ना? सर स्लाइड और बोर्ड मिक्स करके पढ़ा दीजिए। काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर आखिर में स्लाइड से मैं आप लोगों को काम करूंगा, समराइज कर दूंगा। क्लियर है? मैं आपको दोनों स्लाइड भेज दूंगा, जो मैंने पढ़ाया था वो भी भेज दूंगा, और जो ओरिजिनल स्लाइड है जो मैंने बना के रखी है वो भी भेज दूंगा आप लोगों को। चलिए, सबको बोर्ड दिख रहा है? यस। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था व्हाट इज एंटिटी, व्हाट इज एंटिटी सेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये तीन टर्म हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है ना। इसका हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में देखा था। यहां तक किसी को कोई डाउट है पहले पूछ लेंगे। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए आज पहला टर्म देखते हैं, रिलेशनशिप। सो डेफिनेशन देखते हैं। The association of entities is called relationship. Clear? The association of entities is called relationship. For example, we have an entity set student and second entity set as teacher. Okay, so this is my entity set teacher. This is my entity set student. Clear? Now, for teacher entities, we have, let's suppose Dinesh, Pavan, Koleshwar. So these are all the individual entities. For example, Partha. These are all entities or extension of entity set teacher. Similarly, we have S1, S2, S3, S4, S5.
students. So these are the extension or entities of entity set student. Now the association between this Dinesh entity to S1 entity is known as relationship. This association is known as relationship. Clear? For example, Dinesh is teaching S1 as well as S3. Pawan is teaching S4 as well as S3. Koleshwar is teaching to S1, S2, S4 and S5. And Partha sir is teaching S3 and S5. So these are individual. One association is known as one relationship. Clear? And एक डायग्राम हम ये भी बना लेते हैं और उससे पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. Next term is relationship set. So the set of similar relationship is known as relationship set. Clear? The set of similar relationships is known as relationship set. So we have teacher entities, we have student entities, and we have n number of relationships between teacher entities to student entities. So we term it as teachers relationship. Clear? We write it as relationship set name is teachers. So teacher teaches student. So this is entity set. This is my entity set. This is again an entity set. And name of the entity set is student. Name of the entity set is teacher. And this is our relationship set. So set of similar relationship set of similar relationship is known as relationship set. So teacher teaches student. Their teacher and student both are entity sets, and teachers is an relationship set. Clear है? डायग्राम दिख रहा है सबको? डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. आगे बढ़ो. Yes, sir. Now to denote entities set in ER diagram, we create what we create? We create rectangle boxes. So this is my teacher entities. This is our student entities. And this is the relationship set, which is known as teachers. Clear? So this is entity set. This is again an entity set, and this is your
relationship set. So to denote relationship set, we have to create diamond boxes. Clear? Whereas for entity set, we create rectangle boxes. क्लियर है? क्लियर है? डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। Yes, sir. Now next term is degree of relationship set. So it is the number of entity sets participated in a relationship set is known as the degree of relationship sets. So the number of entity sets participated in a relationship set is known as the degree of relationship set. So we have unary relationship, so in case of relationship n is equal to 1, that means only one entity should participate in a relationship set. So for example, consider an ER diagram. Employee works for employee. Clear? Employee works for employee. So we have some attributes of employee as employee number, which is the prime attribute, employee name, salary, and we have a relationship known as works for. ठीक है? So employee works for employee. So these are nothing but the managers, and these are workers. Clear है? What does these workers and managers, ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है? यूनरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही ऐसा, ये जो रिलेशनशिप सेट है, इस रिलेशनशिप सेट में एक ही मेरा जो है एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है? ओनली वन entity set is participated in a relationship set, or we say it is an unary relationship. Clear? आगे बढ़ो. Yes, sir. लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आपने? Yes, sir. कि पूरा नोट बाहर सा बना के दे रहे हैं? नहीं सर, लिख रहे हैं. सेकंड आ जाते हैं बाइंग
binary relationship. Where n is equal to 2. N is equal to 2 means there are two entity sets which are participated in a relationship set R. So, for example, teacher and student. We have two entity sets, teacher and student, and there is one relationship set which is known as teachers. Clear? So for teacher we have teacher ID, teacher name, and specialization of teacher. And for student, we have student ID, student name, semester, branch. So this is binary relationship. So in case of binary relationship, for one relationship, it is participated with two entity sets. Clear? First entity set is teacher, second entity set is student. So teachers is known as binary relationship. Clear? It is binary relationship. क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. Yes, sir. थर्ड आ जाते हैं टर्नरी रिलेशनशिप, और यू कैन से इट इज नोन एज टर्शियरी रिलेशनशिप. In case of ternary relationship, what is the value of n? Value of n is 3. So again, example is teacher, student. So teacher teaches student a particular course. So we have three entity sets. First one is teacher with teacher ID, teacher name, and specialization of teacher. Student with student ID, prime attribute, student name, semester, branch. Course with course ID, course name, credits of the course. Or you can also include syllabus of the course. Clear? So this is our ternary relationship, in which a relationship, it is associated to three different entity sets.
First one is teacher entity set, second one is student entity set, and third one is course entity set. Clear? क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके आगे भी होता है क्या कुछ? इसके आगे को हम बोल देते हैं एनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, एनरी रिलेशनशिप सेट मीन्स वी हैव now we have E1, E2, E3 and E4 which are participated to one relationship set R. So what is n-ary relationships? That means n is greater than or equals to 4. Here n is greater than equals to 4, इसको हम बोल देते हैं n-ary relationships. क्लियर है? अगर n इक्वल्स टू 4 होता है तो उसको हम क्वार्टरनरी भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म यूज करते हैं हम n-ary रिलेशनशिप। क्लियर है? क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप सेट जो है हमको रेयरली मिलेंगे, अप टू 3 तक ही हमें जो है मिलेंगे, उसके आगे जो है वो रेयरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज नोन एज पार्टिसिपेशन। So it is the association among several entity sets in a relationship set is known as its participation. So the association among several entities sets in a relationship set is known as its participation. We have two types of participation. First one is total participation. That means if all entities in a entity set participate at least one in a relationship set R is known as if all entities in an entity set participate at least once in a relationship set, then the entity set यहाँ पे कर देंगे E1, E1 is set काम करते हैं
it is known as total participation. सेकेंड लिखेंगे हम पार्शियल. So if some entities in an entity set even participate at least once in a relationship set, capital R, then it is said or it is called partial participation. क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ रही है? डेफिनेशन में जो मेन चीज है वो है ऑल एंटिटीज एंड सम एंटिटीज. ठीक है? इफ ऑल एंटिटी सेट्स, इफ ऑल एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी सेट should participate at least once, ठीक है, at least once in a relationship set R, then it is said to have total participation with respect to R. And for partial participation, if some entity sets of an entity set should participate at least once in a relationship set capital R, then it is said to have partial participation. आगे बढ़ो, लिखिए, एग्जाम्पल देखें इसका. Yes, sir. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज करो ये हमारे पास एक एंटिटी सेट है टीचर और ये सेकेंड एंटिटी सेट है स्टूडेंट. So for teacher entities we have again Dinesh, Pawan, Koleshwar, Partha sir and Sunil sir. For student, let's suppose we have S1, S2, S3, S4, S5. Clear? Now Dinesh is teaching all the students S1, S2, S3, S4, S5. Clear? Similarly, Pawan sir is teaching all the students S1, S2, S3, S4, S5. Clear? Similarly, Koleshwar sir is also teaching to every student S1, S2, S3, S4 and S5. Now Partha sir is teaching to only S1 and S3. Clear? And Sunil sir is teaching S5, S4. ठीक है? So this is our relationship set. ये दिख रहा है सबको कि कुछ ज्यादा ही लकीरें खींच के समझ में नहीं आ रहा है? आप बोलेंगे तो मैं इसको थोड़ा कंसाइज कर सकता हूं. हम एक काम करते हैं,
कुछ ही एंटिटी सेट्स को हम यहाँ रखते हैं। तो हमने 3 एंटिटी रखी है, एक रखा है दिनेश, एक रखा है हमने पार्थ सर और एक रखा हमने सुनील सर। तो दिनेश सर जो है वो सभी को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेक्शन में पढ़ा रहे हैं। पार्था सर जो है वो S1 एंड S2 को पढ़ा रहे हैं एंड सुनील सर जो है वो S3, S4 एंड S5 को पढ़ा रहे हैं। So this is our relationship set teaches. क्लियर है? अब इसको अगर हमें ER डायग्राम में शो करना है, इस सिचुएशन को हमें ER डायग्राम में शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे टीचर teaches student। ठीक है, अब किसका टोटल पार्टिसिपेशन है? किसका टोटल पार्टिसिपेशन है? दिनेश का। किसका टोटल पार्टिसिपेशन है? एंटिटी दिनेश का। स्टूडेंट का। डायग्राम अभी भी जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप सेट में किसी एंटिटी सेट का पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? एंटिटी सेट का। एंटिटी सेट मतलब हमारे पास 2 एंटिटी सेट हैं, एक है टीचर एंटिटी सेट, ठीक है, एक हमारे पास टीचर एंटिटी सेट है, एक हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी सेट है। तो टीचर का टोटल पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल, स्टूडेंट का टोटल पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि इफ ऑल द एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी सेट should participate at least once in a relationship set, or the participation of that particular entity set is called total। ठीक है, टोटल मतलब सारे के सारे एंटिटी कम से कम एक रिलेशनशिप सेट में, तो एक रिलेशनशिप में होंगे विद इन अ रिलेशनशिप सेट। दैट मींस टीचर का भी क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इसका भी क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन है। और स्टूडेंट का भी क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि सारे के सारे टीचर किसी न किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं एंड सारे के सारे स्टूडेंट किसी न किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो इस केस में क्या है? दोनों के दोनों टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन है तो हम टोटल पार्टिसिपेशन कैसे डिनोट करते हैं? यूजिंग डबल लाइन। ठीक है, टीचर का भी टोटल पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट का भी टोटल पार्टिसिपेशन है। क्लियर है? बट सपोज करो ना, सपोज करो कि वी हैव अनदर एग्जांपल वेयर दिस इज माय टीचर एंटिटी सेट, दिस इज माय स्टूडेंट एंटिटी सेट। We have 3 teachers, we have 6 students. Now Dinesh S4, S5. Partha sir is teaching S1 and S2 only. Sunil sir is teaching S3, S4, S5. ठीक है, this is my relationship set teaches. Now इस कंडीशन को अगर मैं ER डायग्राम में मेंटेन करूं
तो किसका टोटल पार्टिसिपेशन है और किसका पार्शियल पार्टिसिपेशन है? एक बार डायग्राम फिर से दिखा सकते हो प्लीज? हाँ, दिखा रहा हूँ। So we have teacher teaches student. और नीचे करो। The teacher set का पूरा टोटल पार्टिसिपेशन है। हाँ, क्या करना है इसमें? सर टीचर्स एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन है। हाँ, इधर जो है वो टीचर का जो है वो क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन है ना? सो टीचर हैव टोटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स किसी न किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस 6 स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट ऐसा है जो किसी से भी नहीं पढ़ रहा है। सो स्टूडेंट का जो है वो क्या है? पार्शियल पार्टिसिपेशन। क्लियर है? सो टीचर का हमारे पास क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डबल लाइन। और पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो हम लगाएंगे सिंगल लाइन। क्लियर है? सो टू डिनोट the participation constraints in an ER diagram, टोटल को हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं डबल लाइन से, और पार्शियल को हम डिनोट करते हैं सिंगल लाइन से। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है ये दोनों का टोटल पार्टिसिपेशन था। यहाँ पे क्या है? टीचर का टोटल पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट का क्या है? पार्शियल पार्टिसिपेशन है। कुछ स्टूडेंट जो है वो पढ़ ही नहीं रहे किसी से भी। क्लियर है? क्लियर है पार्टिसिपेशन का? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज। और इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनलिटी रेशियो। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। It is the ratio of number of entities is associated to number of entities। यहाँ पे लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज in an entity set E1 is associated to number of entities in an entity set E2 via a relationship set capital R। क्लियर है? दिख रहा है सबको डेफिनेशन? So it is the ratio of number of entities in an entity set E1 is associated to or related to number of entities in an entity set E2,
another entity set E2 via a relationship set capital R. So this is known as cardinality ratio. So second देखते हैं, for binary relationship we define 4 types of mapping cardinalities now. First one is 1 2 1 is denoted by 1 raised to 1. Second is known as 1 2 many 1 colon m. Third one is many 2 1. This is known as m raised to 1. And fourth one is many 2 many, is denoted as m raised to n. So 1 to 1 means one even entity is related to one E2 entity. Clear? 1 to many means one even entity is related or associated to many E2 entities. Many to one is just reverse of 1 to many. That is, many even entities are associated to one E2 entity, and last one is many to many. That means many even entities are associated to many E2 entities. क्लियर है? अब इसको एग्जांपल से देखते हैं, आगे बढ़े बढ़े ना, स्पीड ठीक है ना? Yes, sir. ज्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्जेक्ट? Yes, sir. So this is our E1 entities and this is our E2 entities. Here entities are A, B, C, D, E, and this is X, Y, Z, W, V. ठीक है? फर्स्ट हम देख रहे हैं 1 to 1. ठीक है? तो 1 to 1 means one even entity is related to only one E2 entity. So A is associated to X, B is associated to Y, C is associated to V, D is associated to Z, E is associated to W. Clear? That means one even entity is associated to one E2 entity via a relationship set capital R. So this is known as 1-to-1 relationship. यह डायग्राम में कैसे मेंटेन करेंगे इसको? This is E1, this is E2, and relationship set is R. क्लियर है? अब डायग्राम से देख के मुझे बताइए, E1 का टोटल पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन? टोटल। E1 का टोटल, E2 का Total. दोनों का टोटल। अगर मैं यहाँ पे एक और एंटिटी इंक्लूड कर दूं, कहां पर? E1 में, मैं यहाँ लिख देता हूं मैं F।
नाउ E1 का, Partial. E2 का, total, ठीक है। सो E1 का पार्शियल, E2 का टोटल। तो ER डायग्राम में हम कैसे मेंटेन करेंगे? E1 का है पार्शियल पार्टिसिपेशन, E2 का क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन। क्लियर है? अब नोटेशन हम यूज करते हैं दो टाइप के यहां पर, या तो इसको मैं हम लिख रहे हैं 1 to many, तो या तो मैं लिखूं 1 to many, सॉरी 1 to 1 है ना, या तो मैं लिखूं 1 to 1, या तो मैं क्या करूं, दोनों साइड में एरो इंक्लूड करूं। या तो मैं दोनों साइड में एरो इंक्लूड करूं, या तो फिर मैं इन लाइंस के ऊपर लिखूं 1 to 1। ये दो टाइप के नोटेशन है। ये नोटेशन आपको मिलेगा नवाते की बुक में, और ये नोटेशन मिलेगा आपको कोर्ट की बुक में। क्लियर है? सो जो भी नोटेशन आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। आ रहा समझ में 1 to 1? आगे बढ़े। Yes, sir. सेकंड देखते हैं, 1 to many, 1 raised to m। So this is A, B, C, D, E, F. This is E1 entities. This is my E2 entities. This is X, Y, Z, W, V. हम बना रहे हैं 1 to many. That means one E1 entity is associated to many E2 entities. One E1 entity is associated to many E2 entities. One E1 entity is associated to many E2 entities. एक मिनट, गलत हो गया। ठीक है, one E1 is associated to one E1 entity is associated to many E2 entities. One E1 entity is associated to many E2 entities, and one E1 entity is associated to many E2 entities, and this is your relationship set capital R. क्लियर है? तो यहां पर हम देखें तो A जो है वो X और Y से एसोसिएटेड है, B जो है वो Z एंड W से एसोसिएटेड है, F जो है वो V से एसोसिएटेड है। क्लियर है? तो ये 1 to many में मैनी केस में मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ एंटिटीज हो सकती है। मतलब A जो है वो एक X से भी रिलेटेड हो सकता है, A जो है X और Y दोनों से रिलेटेड हो सकता है, A X, Y, Z तीनों से भी एसोसिएटेड हो सकता है। सो दिस इज आवर 1 to many। अब 1 to many को हम कैसे डिनोट करेंगे? E1, E2, R, ठीक है। 1 to many, तो या तो हम लिखें 1 to many। अच्छा, पहले मुझे बताइए E1 का क्या है? टोटल के पार्शियल। Partial. नाउ E1 हैज पार्शियल पार्टिसिपेशन, E2 का Total. टोटल पार्टिसिपेशन। वेरी गुड। तो आप यहां जाते हैं, E2 का टोटल पार्टिसिपेशन है, तो यहां डबल लाइन आएगी, और यहां पे हम क्या करेंगे? 1 to
मैनी हम डिनोट किए। सेकेंड वे है कि हम यहाँ पे लिखें E1, यहाँ पे हम लिखें E2, रिलेशनशिप सेट और E2 का है टोटल पार्टिसिपेशन, तो ये हो जाएगा 1, और मैनी साइड में हम कोई भी एरो इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? जहां हमने एरो इंक्लूड नहीं किया है दैट इज मैनी। सो जहां पे मैंने एरो इंक्लूड किया है विच डिनोट्स 1, जहां पे एरो इंक्लूड नहीं किया है विच डिनोट्स मैनी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Again, this is my fourth notation. This is my Nahati notation. अलग अलग बुक का अलग अलग नोटेशन है। क्लियर है? यहाँ पर अब आ जाते हैं थर्ड हम लेते हैं मैनी टू वन। So many to one is just the reverse of one to many. चलिए many to one के लिए हाँ सर आप एक मिनट थोड़ा ऊपर कर सकते हैं क्या, या फिर पिछली स्लाइड में जा सकते हैं प्लीज? पिछली साइड में बिल्कुल जा सकते हैं भाई। ये लो तो छोटा कर दूं थोड़ा, लो सब कुछ अवेलेबल है भाई यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है, जो भी लिखना है जो भी देखना है। जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए तो मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं, है ना। ये सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते मुझे सब कुछ रटा गया है ना, हर चीज रटा गई है मुझे। ऐसे ही आप लोगों को समझ समझ के रटना है, रटा जाएगा ना कि नहीं रटाएगा? सर रटा जाएगा। अब आते हैं many to one। ठीक है, many to one means many even entities are associated to one E2 entity। तो A और B both are associated to Y, C and D both are associated to V, sorry, C is associated to W, D is associated to V, E and F both are associated to Z। So this is my relationship set R। फटाफट बताएंगे E1 का टोटल की पार्शियल, Total. E1 का टोटल, E2 का पार्शियल, E2 का पार्शियल सर। पार्शियल। क्यों पार्शियल? क्योंकि एक एक्स एंटिटी जो है वो किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है। रिलेशनशिप सेट आर, आर का है सॉरी E1 का है टोटल पार्टिसिपेशन। E1 मैनी साइड को बिलोंग करता है, E2 वन साइड को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एरो। क्लियर है? आगे बढ़े लास्ट कैटेगरी देखें।
fourth category is many to many. M raised to n. अभी है जो मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए। अब भाई किसी ने बुक खोल के देखी भी? सर मैंने तो नहीं देखा। चलिए बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आखिरी में आप लोगों को बुक पढ़ना है। चलिए अब आ जाते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी मीन्स मैनी इवन एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू मैनी। देखिए मैनी इवन एसोसिएटेड टू वन एंड मैनी E2 एंटिटीज आर एसोसिएटेड टू मैनी इवन एंटिटीज। मतलब ये भी 2 से कनेक्ट होगा या 3 से कनेक्ट हो सकता है, और यहां से भी जो है वो मैनी E2 एंटिटीज से एसोसिएट हो सकते हैं। So I think it is the combination of, we can say it is the combination of one to many and many to one। बोल सकते हैं ना, यहां से भी वन टू मैनी है, यहां से भी वन टू मैनी है। क्लियर है? E1 टू E2 हम देखें तो भी वन टू मैनी है, E2 टू E1 देख रहे हैं तो भी वन टू मैनी है। सो इट इज नथिंग बट मैनी टू मैनी। हाँ चलिए फटाफट बताएंगे। E1 का टोटल की पार्शियल पार्शियल पार्शियल, E2 का टोटल टोटल। डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। E1 E2 via a relationship set capital R। E1 का पार्शियल, E2 का टोटल, मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी में m रेस टू n ही लिखा जाता है, m रेस टू m नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, कौन बताएगा? सर अगर हम m/m लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंटिटी सेट्स के सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं m रेस टू m लिख रहा हूं मतलब यहाँ के 2, यहाँ के 1 से, यहाँ के भी 2, यहाँ के 1 से, जो एकदम आइडियल सिचुएशन में कभी भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम लिखते हैं m रेस टू n, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आपका लेफ्ट साइड हो सकता है कि वो m मतलब हो सकता है कि 5 एलिमेंट्स E1 के यहाँ के 2 एलिमेंट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 रेस टू 2 हम बोलते हैं, 2 रेस टू 5 बोलते हैं। 5 रेस टू 5 भी अगर होता है तो इस 5 को हम m मानते हैं, इस वाला 5 को हम n मानते हैं। क्लियर है? सो हमेशा हम लिखते हैं m रेस टू n, m रेस टू m हम कभी नहीं लिखते। हाँ तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों साइड मेरा क्या है, मैनी टू मैनी, तो मतलब मुझे कहीं पे भी एरो नहीं बनाना है। क्लियर है? सो दिस इज अवर मैपिंग कार्डिनलिटीज। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
next topic is role names or role. So definition लिखते हैं इसकी हम, if the function that an entity plays in a relationship is called its role. क्लियर है? अब यहां पर हम कुछ नोट लिखेंगे. फर्स्ट नोट लिखेंगे हम कि रोल इंडिकेटर्स are implicit in binary and ternary relationships and are optional. सेकंड लिखेंगे हम रोल इंडिकेटर्स आर explicit in unary relationships and are mandatory. फिर दो टर्म लिखा मैंने, ये टर्म्स को आप याद रखेंगे. ऑप्शनल इन केस ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी एंड मैंडेटरी इन केस ऑफ यूनरी. ठीक है? अब ये रोल होता क्या है? तो रोल के लिए हमने लिखा है कि द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेस इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड इट्स रोल. So for example, अगर मैं एक ER डायग्राम क्रिएट करता हूं, टीचर टीचेस स्टूडेंट. तो ये एक रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है. ठीक है? अब इस टीचर का इस टीचर रिलेशनशिप में क्या रोल है? तो वो इम्प्लिसिट है, डिफाइंड है पहले से कि टीचर जो है वो टीचर्स में टीचर टीच कर रहा है ना. स्टूडेंट का क्या रोल है? तो वो भी डिफाइंड है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो इस टीचर्स रिलेशनशिप में लर्न कर रहा है कुछ. तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिट रोल इंडिकेटर्स बताने की नीड नहीं है. क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये डायग्राम को अगर लिखता मैं कि पर्सन टीचेस स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रोल इंडिकेट कर सकता हूं कि ये पर्सन का इस टीचर्स रिलेशनशिप में क्या है कि ये पर्सन मेरा क्या है, वो टीचर है. ठीक है? तो दिस टीचर इज नोन एज रोल इंडिकेटर. ठीक है? दिस इज नोन एज योर रोल इंडिकेटर. सो जनरली हम एंटिटी सेट्स के नेम ऐसे देते हैं कि वो इम्प्लिसिटली डिफाइन हो जाए कि वो टीचर है तभी वो टीच कर रहा है. क्लियर है? बट इन केस ऑफ यूनरी रिलेशनशिप हमने एक बनाया था एम्प्लॉय
works for एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, ये हमने रिलेशनशिप बनाई थी और इसमें हमने लिखा था कि दीज आर मैनेजर्स एंड दीज आर वर्कर्स। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मुझे बताना पड़ रहा है कि क्या रोल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस आर नथिंग बट योर रोल इंडिकेटर्स, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉय जो है इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप में 2 बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉय है वो उस वर्क्स फॉर का मैनेजर है कि वर्कर है, क्योंकि कुछ वर्कर जो है वो किसी मैनेजर्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा रोल इंडिकेटर से क्या मिले? समझ में आ रहा है क्यों हम रोल इंडिकेट कर रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि ये जो वर्क्स फॉर रिलेशनशिप सेट है, इस सेट में हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप सेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये वर्क्स फॉर, इसके अंदर हम लिख रहे हैं E1, E2। ठीक है, नाउ मुझे बताना पड़ेगा कि ये E1 कौन है, E2 कौन है। ये एक सेट है, सेट ऑफ E1, E2। तो E1 जो है, E1s आर मैनेजर्स, E2 आर वर्कर्स। क्लियर है? तो मुझे E1, E2 ER डायग्राम में बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो मेरा रिडंडेंसी हो जाएगी कि एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के अंदर वर्क कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय किसके अंदर वर्क कर रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एवरी एम्प्लॉय इज एन वर्कर, बट आउट ऑफ दी वर्कर्स कुछ वर्कर ऐसे हैं जो किसी मैनेजर के, जो मैनेजर्स हैं जो किसी वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है? एवरी एम्प्लॉय इज एन वर्कर बट सम वर्कर्स आर आल्सो मैनेजर्स। तो कौन से मैनेजर्स हैं वो आपके E1 में आएंगे और वर्कर्स जो उनके अंदर वर्क कर रहे हैं वो आएंगे E2 में। क्लियर है? सो दीज आर नथिंग बट योर रोल इंडिकेटर्स, एंड रोल इंडिकेटर्स आर नेसेसरी or you can say mandatory in unary relationship, whereas it is optional in case of binary and ternary or quaternary relationship, क्योंकि वहां पर जो मेरे एंटिटी सेट्स हैं, both the entity sets are distinct. ठीक है, both the entity sets are distinct and their roles are implicitly defined, whereas in case of unary my entity sets are not distinct. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट? आगे पढ़ना है? आगे पढ़ना है कि छोड़ दूं? छोड़ दीजिए सर। और नहीं पढ़ना है आज? चलिए, अब जितना पढ़े हैं उसको एक बार मैं आप लोगों को इसमें भी दिखा देता हूं। कुछ लोग अभी एडमिट हो रहे हैं, बताओ। मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूं, वो स्लाइड आप देखेंगे बताएं कुछ चीजें छोटी तो नहीं है। देखिए, हमने देखा रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। तो ये एक एसोसिएशन है
एस एन L15 एक एसोसिएशन हुआ। फिर रिलेशनशिप सेट, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सिर्फ बताई थी, इसका मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बताया था। तो ये मैथमेटिकली भी डिफाइंड है कि E1 E2 अप टू En, E1 जो है वो इस कैपिटल E1 से आएगा, E2 कैपिटल E2 से आएगा, En कैपिटल En से आएगा, है ना। where E1 E2 En is in relationship, मतलब this set is known as relationship set। फिर ये एग्जांपल था जिसमें ये एम्प्लॉइज सॉरी ये कस्टमर, आपके कस्टमर एंटिटीज हैं, ये आपके या फिर कस्टमर एंटिटीज हैं, या आपके लोन एंटिटीज हैं, और ये जो है ये रिलेशनशिप सेट है बोरोवर, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसा, कस्टमर लोन बोथ आर एंटिटीज रिलेशनशिप सेट। बाकी जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट पहले ही पढ़ लिया हमने। फिर है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में देखा था हमने दो टाइप का, एक था टोटल, एक था पार्शियल। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट टीचर्स टीचर या टीचर टीचर स्टूडेंट है, इसे मुझे बताइए स्टूडेंट का टोटल है कि पार्शियल? पार्शियल। पार्शियल। टीचर का टोटल। टोटल। अब मुझे बताइए स्टूडेंट टू टीचर इट इज 1 to many और many to many और many to 1 और 1 to many? सर 1 to 1। 1 to 1। 1 to 1। 1 to 1 है ना। फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर एंड टीचर टू स्टूडेंट बोथ आर 1 to 1। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 to 1 लगाया है, दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1। टीचर का स्टूडेंट का जो है पार्शियल था, टीचर का जो था वो टोटल था। तो ये देखिए पार्शियल का नोटेशन, ये देखिए टोटल का नोटेशन। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस। तो ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको। रिलेशनशिप इंस्टेंस मतलब एक इंस्टेंस जो होगा, जो मतलब एक एंटिटी E1 की होगी, एक E2 की एंटिटी होगी, उसको हम एक रिलेशनशिप इंस्टेंस बोलते हैं। ये आपकी डायग्राम में डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये हमें टॉपिक छोड़ दिया आज, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज डिग्री। तो डिग्री हमने देखा, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 इज नोन एज बाइनरी, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो ये था आपका यूनरी, जो मैंने बताया एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एम्प्लॉय। तो कुछ एम्प्लॉय मैनेजर्स हैं, कुछ एम्प्लॉय वर्कर्स हैं। दिस इज रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप। तो बाइनरी मतलब कस्टमर और लोन दो एंटिटी सेट्स आ गए। फिर है टर्नरी, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच एंड हैव अ पर्टिकुलर जॉब एसोसिएटेड इन दैट ब्रांच। तो ये मेरी हो गई टर्नरी रिलेशनशिप, क्योंकि 1, 2 and 3 there are 3 entity sets which are participated in this relationship set। फिर रोल इंडिकेटर्स पढ़ा हमने। तो रोल इंडिकेटर्स में हमने देखा कि एंटिटी सेट पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप आर जनरली डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है तो हम इम्प्लिसिटली रहता है, उसको हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वो ऑप्शनल रहता है। लेकिन अगर यूनरी है, जिसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट रोल नेम देना पड़ेगा। मैंडेटरी है बताना कि वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैनेजर एंड वर्कर्स मैंने एक्सप्लिसिटली बताया है, क्यों? क्योंकि यूनरी रिलेशनशिप है। फिर मैपिंग का आइडेंटिटी पढ़ा हमने, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ये उनके डायग्राम्स हैं, देखिए 1 to 1, 1 to many, this is many to 1 and many to many। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, ये भी। तो कोई डाउट नहीं आज के क्लास में? एक टॉपिक बच गया है, बोलो तो पढ़ा दूं? नो सर। अगली क्लास में पढ़ेंगे ना? यस सर। यस सर। सब्जेक्ट समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। तो नहीं लग रहा है? यस सर। क्या बोर लग रहा है? नो सर। पक्का ना? यस सर। अगर किसी का छूट रहा हो तो मैं साथ में वीडियो भी भेज रहा था,
तो अगर किसी को लग रहा हो तो पिछले 2 साल की रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है मैं ना भी भेज पाऊंगा। सेक्शन ए से रोल नंबर 6 एब्सेंट, रोल नंबर 12 एब्सेंट, रोल नंबर 14 एब्सेंट,